Now, if you talk about aggregate demand, aggregate supply, what are the components of aggregate demand? Components, please mind my words. I'm asking what are the components of aggregate demand? Correct. So if the question comes that components of aggregate demand, define aggregate demand and explain its components. So the components are not C plus I. That is for the sake of simplicity, for understanding the concept of equilibrium level of income and employment, we do C plus I approach and C plus S approach. But if theoretically they are asking define aggregate demand and what are the components of aggregate demand, it is C plus I plus G plus X minus M. Now to begin with C, what are the components of C? अब हम बड़े बच्चे हैं, सीधा सीधा बात कर सकते हैं. A plus BY और sorry, A plus BY actually I am teaching UK people also for economics. So they guy instead of C bar they use A, तो मुझे वहीं याद आ रहा था, मैंने वहीं लिख दिया गलती से. For your level it is C bar plus BY. Now what is C bar? Minimum consumption at zero level of income. Minimum consumption at zero level of income is called autonomous consumption. So what does autonomous consumption represents? Autonomous consumption represents, बोलो यार आज आप लोगों की भी बारी है साथ साथ. I'm just revising, I'm just trying to go quickly through it. What does autonomous consumption represent? Hurry up guys. We don't know sir. Autonomous consumption represents this savings in the economy. Autonomous consumption represents, अगर गलती से पूछ ले what does autonomous consumption represents? Autonomous consumption represents, देखो, define autonomous consumption and what does autonomous consumption represent? Two different questions. So when they say define autonomous consumption, we write the definition which says minimum consumption at zero level of income. But when it says what does autonomous consumption represents, you say sir it represents this saving in the economy. Now comes B. But before I go to B, first let's talk about C. We said C bar plus BY, where B stands for, everybody knows B stands for MPC, which is marginal propensity to consume. And as per consumption function, when you are explaining marginal propensity to consume, while explaining the consumption function, you say B lies between 0 and 1. The value of MPC lies between 0 and 1. So far, so good. All right. Now, types of consumption. But before that, again, let's first talk about consumption. What is consumption? It is also called, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, that's why I keep on writing that consumption is also called propensity to consume. Now, what is propensity to consume? Functional relationship between consumption and national income. And whenever you say consumption, try saying aggregate consumption, and whenever you say income, try saying national income. So consumption function represents the functional relationship between aggregate consumption and national income. Now, between consumption and national income, what's the relationship? Direct relationship. Between consumption and national income, what's the relationship? Direct relationship. That is, as the national income increases, aggregate consumption also increases. But यहाँ पे एक लाइन रखना जरूरी होता है for explaining certain relationship later on. As per consumption function. As per consumption function. Consumption increases less than proportionately than national income. As per consumption function, consumption increases less than proportionately than national income. So far so good. Lock कर दूं? कर दिया मतलब. That is the reason. अभी हम थोड़ी देर बाद और भी relationship की बात करेंगे. Now,
types of consumption. Number one is APC. I just remember the formula, that the formula of APC is C by Y. So definition wise, मुझे नहीं रट्टे मारने. Can I say this is consumption, this is income? और upon करके maths की language बोलूँ तो ratio. The ratio of aggregate consumption to national income is called average propensity to consume. The ratio of aggregate consumption to national income is called average propensity to consume, or you can say the level of consumption at a given level of income. Because when you count APC, जब आप कैलकुलेट करते हो शेड्यूल में, आप क्या करते हो, C को एक पर्टिकुलर Y से, एक पर्टिकुलर C को एक पर्टिकुलर Y से डिवाइड करते रहते हो. That is also another definition for APC. The level of aggregate consumption corresponding to different levels of income is called average propensity to consume. Symbolically, it is C by Y. Symbolically, it is C by Y. Now, between APC and national income, what is the relationship again? अभी मैं schedule बना के भी दिखा दूंगा. But yes, जब भी आप रिलेशनशिप लिख रहे हो, स्केड्यूल हम अलग से एक ही साथ कर लेंगे सभी के स्केड्यूल. द वन थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज, जब भी आप नेगेटिव रिलेशन लिख रहे हो तो आपको साथ में वो जो पिछली डेफिनेशन है, दैट रीजन क्या है, एपीसी डिपेंड्स ऑन सी एंड कंजम्पशन इंक्रीजेस लेस देन प्रोपोर्शनेटली देन national income. So whenever you are writing the relationship, say for example between APC and national income, will say there is an inverse relationship between APC and national income, that is as the national income increases APC decreases. But why? Because same line जो पीछे लिखा था in consumption function, that because of consumption function or as per consumption function, consumption increases less than proportionately than national income. Then comes MPC. Now MPC is delta C by delta Y. MPC is delta C by delta Y. अब फॉर्मूला यहीं से आ गया, डेफिनेशन यहीं से आ गया. एपीसी में बस डेल्टा ही तो लगाया, खाली एपीसी का फॉर्मूला याद कर लो, एमपीसी उसके साथ आ गया क्योंकि एमपीसी इज मार्जिनल कॉल्ड एडिशनल. ऑलराइट, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द रेशियो ऑफ चेंज इन एग्रीगेट कंजम्पशन, क्योंकि डेल्टा लग गया मींस चेंज. The ratio of change in aggregate consumption to change in national income is called marginal propensity to consume. नया कुछ याद नहीं करना है. The ratio of change in aggregate consumption to change in national income is called marginal propensity to consume, or same definition. The level of change in aggregate consumption corresponding to change in national income is called marginal propensity to consume. And as per, यहाँ पे फिर definition में आप लिख देंगे, as per consumption function, the value of B lies between. यहाँ पे explain करते वक्त आपने नहीं बोलना MPC can be 0, can be 1. That is when it is being asked upon separately. When you are explaining the concept, you are explaining it with respect to consumption function. There you say as per consumption function, the value of MPC lies between 0 and 1. Now, relationship between MPC and national income. अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है विदाउट कंजम्पशन फंक्शन गिवन, सर एज इन जैसे मैंने यहाँ लिखा C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y. ठीक है, मैंने क्वेश्चन में लिखा, सुनना बेटा मेरी बात, मैंने क्वेश्चन में लिखा C इज इक्वल टू 0.8y. For this consumption function, explain the relationship between MPC and national income. ये कभी नहीं पूछा गया, सिर्फ एग्जाम के लिए बता रहा हूँ. अगर वो एक कंजम्पशन फंक्शन आपको दे और फिर रिलेशनशिप पूछे, there is no relationship because this represents B. B is, and which we have taken as constant, so then there is no relationship between MPC and national income. कब? When you are talking about MPC with respect to a given consumption function. Now let's cut it. And question comes straightforward. Define MPC and explain the relationship with national income. Then again, what relationship you have? This is I'm talking about without consumption function. So this consumption function value is not given. And question says define marginal propensity to consume and explain the relationship between MPC and national income. Then again, relationship will remain
सेम। शेड्यूल हम देख लेंगे कैसे बनेगा, बट व्हेन यू अगेन राइट दिस लाइन, आपको फिर से क्या लिखना है, एज पर, व्हाई इट इज सो, व्हाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, अगेन यू हैव टू राइट दिस लाइन, बिकॉज एज पर कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन इंक्रीजेस लेस देन प्रोपोर्शनेटली देन नेशनल इनकम। शेड्यूल एक ही बार देख लेंगे। सो टू बिगिन विद, ये हमने आपके साथ डायग्राम भी एक साथ देखेंगे, अलग अलग, आज में पहले थियरी देन डायग्राम देन शेड्यूल, सेपरेटली बात कर रहा हूं ताकि शेड्यूल एक ही साथ सारे कंसोलिडेशन में हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। नाउ कंजम्पशन के बाद अब हम बात कर लेते हैं सेविंग की। सेविंग ऑल्सो कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो था पीटीसी कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हो जाएगा पीटीएस कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू सेव, called propensity to save. Again, this is explaining the functional relationship between aggregate saving and, so S नहीं लिखोगे आप पेपर में, आप S means aggregate saving and Y means national income, between aggregate saving and national income. Functional relationship between aggregate saving and national income. Now, what is the relationship? Positive, called there is a direct relationship between aggregate saving and national income. और यहाँ पे एक लाइन क्या ऐड कर दोगे आप, जैसे वहां पे किया था, why there is a direct relationship, because as per saving function, saving वहां पे consumption increases, क्योंकि इनकम डबल होने से कंजम्पशन डबल, बट सेविंग फास्टर रेट पे बढ़ती है। एक इंसान 100 रुपए कमाता था, सारा बेसिक नेसेसिटी में मीट करता था, अब 200 रुपए कमाता है, तो क्या 190 रुपए खर्चेगा, बेसिक नेसेसिटी मीट हो गई, 30 रुपए 40 रुपए और खर्च लेगा, 60 रुपए सेव करेगा, नेक्स्ट टाइम और उससे ज्यादा, मीनिंग देयर बाय सेविंग इंक्रीजेस मोर देन proportionately than national income. Saving increases more than proportionately than national income. I repeat, saving increases more than proportionately than national. So far so good. लॉक कर दो, कर दिया। ओके, चलते हैं आगे, भगवान हमारा भला करे। टाइप्स ऑफ सेविंग फटाफट से, ये इनिशियल टॉपिक में टाइम लगता है, बाद वाले तो हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ सेविंग, नाउ टाइप्स ऑफ सेविंग में पहले क्या आ गया, एपीएस, वो था सी बाय वाई, तो ये एस बाय वाई। वहां पे था लेवल ऑफ सेविंग एट ए गिवन लेवल ऑफ नेशनल, नहीं वहां पे था लेवल ऑफ कंजम्पशन, तो यहाँ पे हो जाएगा लेवल ऑफ सेविंग एट ए गिवन लेवल ऑफ नेशनल इनकम, और अदरवाइज क्या बोल सकते हो, द रेशियो। कीवर्ड क्या है, या तो लेवल या रेशियो, और तो बाकी आपने खुद लिखना है। सो द रेशियो ऑफ एग्रीगेट सेविंग to national income is called average propensity to, and there is a direct relationship between aggregate saving and, there is a direct relationship between aggregate saving and national income, और ये direct relation क्या है, सेम वही चीज, कौन सी, as per saving function saving increases more than proportionate, वही एक ही लाइन है जो बार बार तंग करेगी बच्चों, saving increases more than proportionately than national income. Then comes MPS, nothing but delta S by, so the ratio of change in aggregate saving, the ratio of change in aggregate saving to change in national income is called marginal propensity to save. Symbolically it is delta S by delta Y. Same thing, जब मैं एमपीएस और नेशनल इनकम का रिलेशन पूछ रहा हूं विदाउट सेविंग फंक्शन, क्योंकि जब वो सेविंग फंक्शन के साथ पूछेगा, इफ एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ कंजम्पशन फंक्शन, एमपीएस विल आल्सो रिमेन इन अ सेविंग फंक्शन। नाउ व्हाट वाज द सेविंग फंक्शन, मैं लिखना भूल गया, वहां था सी बार या माइनस सी बार, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स this saving in the economy, वहां पे BY था, यहाँ क्यों, बिकॉज अभी थोड़ी देर बाद वापस लिख दूंगा, the MPC plus MPS is always equal to 1, that is why 1 minus MPC becomes MPS,
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेयर दिस 1 माइनस बी रिप्रेजेंट्स एमपीएस। तो जब सेविंग फंक्शन पे वो बेस्ड पूछेगा तो आपको पॉजिटिव वर्ड नहीं लिखना, क्योंकि वहां पे तो 1 माइनस बी में बी कांस्टेंट है, तो एमपीएस विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट, एमपीएस विल आल्सो रिमेन। So this is a relationship when it asks a normal question, what that define MPS and explain the relationship. And I repeat again and again, saving function is not given. Saving function is not given. Then you say that between MPS and national income, again there is a positive called direct. Positive word paper में मत लिखना बच्चों, इनवर्स लिख सकते हो, बट पॉजिटिव की जगह डायरेक्ट रिलेशनशिप. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. व्हाई? एज पर सेविंग फंक्शन, सेविंग increases more than proportionately than national income. So all about APC, APS, MPC and MPS. Income is either consumed or if I divide both sides by y, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है. जिस हिसाब से पेपर आया ना बच्चों आपका इतना टुच्चा था, वो कह देंगे explain the mathematical relationship between APC and APS. So this is mathematical relationship that we know that the income is either consumed or divide both sides by y, but don't ask me why. So divide both sides by y, so it will become y by is equal to c by plus s by, so c by y is and s by y is APS. So hence prove that the sum total of APC and APS is always equal to 1. So they can ask you this mathematical relationship, a very simple basic one. सभी books में सभी teacher कराते हैं. Then comes the relationship between MPC and MPS. But before you start explaining the relationship, you say we know that the change, पहले y is equal to c plus s लिखा था, अब marginal का बताना है तो आप delta y is equal to delta c plus delta s लिख दोगे. That we know that the change in national income is either consumed or saved. Change in national income is either consumed or saved. एक सेकंड दे देना बच्चों. Okay. Now it says delta y. We know that change in income is either consumed or saved. So divide both sides by delta y. So we'll get delta y by delta y is equal to delta c by delta y plus delta s by delta y. So 1 is equal to MPC plus MPS. So the relationship is again proved. अब वो 1 marker question अलग से भी पूछेंगे. So all about relationship, their definitions. Then comes one of the important topic left is investment. Now what is investment? Anybody remember? Yes, Priya Mehra. हाँ, अरे बावला है कि मैं इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ. लेमन सेंस बोल रहा हूँ, बाकी बुक से पढ़ लेना, मुझे भी अभी याद नहीं आ रही. क्या कह रहे हो, इतने साल हो गए, शर्म नहीं आती. ओके. एक्सपेंडिचर ऑन or though expenditure on those goods which helps in producing final good is known as investment. For example, expenditure incurred in buying say plant and machinery which helps in the production of final goods and services is called investment. अगर नहीं याद है एटलीस्ट इतना तो लिख सकते हो ना. Expenditure incurred on capital goods say plant and machinery which helps in producing final goods is called investment. Is called investment. Now investment is of two types. Investment is of two types. Induced investment. Now what is induced investment? What is induced investment? Investment which is affected by rising level of income. So can I write investments which are affected by rising level of income.
in the economy is called induced investment. आई शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, called induced investment. So when you see that you are producing certain goods and you are earning more profit, so you would love to invest. That is what it says. Investments which are affected by rising level of income is called induced investment. Now when you say induced investment, is it income elastic or income inelastic? Elastic. If it is income elastic, objective is to earn profit. It will be done by the government sector or private sector? So induced investments are income elastic and are done by the private sector. And when you talk about diagram, माइक्रो से कंफ्यूज मत होना, भूल जाओ माइक्रो में इनइलास्टिक का मतलब ऐसे करता होता था आई, भूल जाओ माइक्रो था। उसका रीजन है पुत्र, यहाँ आई यहाँ पर है ना, अगर मैं रट्टा लगवाना चाहूँ आई कहाँ है? हाँ अच्छा, क्यों? इनकम बढ़ रही, अच्छा इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रही, तो दिस इज इनकम। और आपने खुद बोला इट इज इनकम, it means with income this kind of investment has direct relation or inverse. तो फिर तो डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग, चाहे माइक्रो मैक्रो कुछ भी पढ़ लो, between the two variables when the relationship is direct the diagram has to be, and if there is inverse relationship the diagram has to be. अब वो इलास्टिक और इनइलास्टिक की शेप वो डिपेंड करता है आप एक्स एक्सिस पे क्या लेते हो और वाई एक्सिस पे क्या लेते हो. सो दिस इज नॉर्मल डायग्राम representing your investment which is income elastic represented by a upward sloping curve. अब हम बात करते हैं लास्ट नेक्स्ट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. मैं पूरा कंप्लीट इन डेप्थ तो नहीं बट आपको 70 to 80% चैप्टर को गो थ्रू कर दूंगा, रेस्ट तो आपको प्रैक्टिस करना होगा बच्चों. इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वहां पे लिखा था दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर अफेक्टेड बाय, तो बस मैं पूरा नहीं लिख रहा, बस वर्ड मैंने क्या लिख दिया, यानी जो पिछली डेफिनेशन थी उसमें आपने बस एक वर्ड क्या ऐड किया, इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर नॉट अफेक्टेड बाय राइजिंग लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज autonomous investment. Investments which are not affected by rising level of income are known as autonomous investment. They are income inelastic. Why? Because उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं. तो ये कौन लोग हैं? So this is generally done by the government sector. इन्वेस्टमेंट इनकम. अब आपने बोला इनकम इनइलास्टिक, दिस इज इनकम इनइलास्टिक जो मैं पहले बना रहा था, बिकॉज आपकी इनकम चेंज होती जा रही है y1 y2 y3 बट आपके इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं आया, सो वी कॉल इट एज इनकम इनइलास्टिक. Aggregate demand. Before I start aggregate demand, I start like this only. Aggregate demand and aggregate expenditure is one and the same. Aggregate demand and aggregate expenditure is one and the same. Now, aggregate demand is what? Expenditure incurred by the consumer on intermediate goods or final goods. क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड के जो कंपोनेंट थे वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की तो बात करते थे. तो अगर मैं डेफिनेशन की भी बात करूं, एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
produced in an economy during one financial year. Produced in an economy during one financial year, and we know that aggregate demand and aggregate expenditure is one and the same. Now, what are the components? Component wise, C. C stands for private final consumption expenditure, called expenditure on final goods and services by the household sector as well as firms. By the household sector as well as firm. Then I stands for investment, called expenditure on capital goods. Expenditure on capital goods. Then comes G, expenditure on goods by government. And X minus M stands for net exports, which is export minus import. But in a two-sector model, since we are only studying with respect to two-sector model, we confine it to AD is equal to, C plus I. And यहाँ पे हम कौन से वाला I लेते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. अभी डायग्राम भी करने हैं, इसलिए मैं साथ साथ बात कर रहा हूँ. हम यहाँ पे कौन से वाला इन्वेस्टमेंट लेते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. Aggregate supply. Now, before I start further, aggregate supply and national income. मैंने अपने नोट्स में दिया था बच्चों, और सॉरी पेपर में भी लिया था. Why aggregate supply and national income are one and the same thing? Or they can say aggregate supply and national income are one and the same thing. Defend or refute. I have covered in my test paper. तो आपके पास पेपर है, 5 पेपर हो गए थे इसके. कुछ लोगों ने नहीं दिए. They can take the paper from me because I am not able to give more time this time. जैसा मैंने सोचा था कि मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, but because of certain situation at my end, I'm not able to stay more. तो आप लोग मेरे से पेपर ले लेना बच्चों. मैं कोशिश करके उसको चेक करके दे दूंगा ऑन प्रायोरिटी बेसिस. सो एग्रीगेट सप्लाई एंड एक बार मेरे को दिविज वो भी चेक करके बता देना, 5 पेपर में से कौन से पेपर की मार्किंग स्कीम अभी तक ग्रुप पे नहीं डली. मार्किंग स्कीम नहीं डला. क्वेश्चन पेपर्स आर आल्सो देयर. क्वेश्चन पेपर ऑल 5 आर देयर. सॉरी, अच्छा देयर आर क्वेश्चन. ओके, गॉट इट. ठीक है, हाँ इस बार मैंने वैसे किया था. आई विल शेयर दैट. Aggregate supply and national income is one and the same thing. Now, what is aggregate supply? The final value of goods and services produced in an economy or available for sale in an economy during one financial year. वहां पे था total value of output और expenditure on final goods and services produced in an economy. यहाँ पे है the total value of goods and services produced or available for sale in an economy during one financial year. Since the expenditure is on factor payment, which represents factor income, that's the reason national income and aggregate supply is one and the. And for a two-sector model, the component of aggregate supply are confined to C plus S. C plus. बच्चों देखो, aggregate supply की definition क्या है? Aggregate supply is the total value of goods and services produced in an economy during one financial year. At the same time, to produce the goods, we have to make factor payment, and factor payment represents factor income. All the expenditure in the form of rent, wages, interest, and profit is factor income, which is also called factor income, and which is nothing but production which generates national income. And that's the reason aggregate supply and national income is one and the same thing. मैंने नोट्स में आंसर दिया हुआ है. All right, so ये हो गया मेरा AD, AS, C, I और S. अब मैं आ गया सबसे पहले स्केड्यूल्स पे बच्चों. स्केड्यूल बेस्ड ऑन कंजम्पशन फंक्शन. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने ये स्केड्यूल ले लिया, और इस स्केड्यूल के बेसिस पे आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एपीसी, एमपीसी, अगर स्केड्यूल बेस्ड, आई रिपीट स्केड्यूल बेस्ड आता है, या आपको कंजम्पशन फंक्शन कहता है एक्सप्लेन करो, टेक दिस, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन के लिए आपको कंजम्पशन देना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज द सेविंग फंक्शन? माइनस, प्लस. बट ये डिराइव कैसे हुआ? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इन द बोर्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट व्हाट इफ, यू नेवर नो, व्हाट इफ ये ऐसे ही स्टार्ट करना है. अगर डेरिवेशन पूछ ले, क्या लिखे? गिव सेविंग फंक्शन नहीं, डिराइव सेविंग फंक्शन. सो कैन आई से आई विल बी राइटिंग y is equal to c plus s. Now y minus c is equal to, so s is equal to minus c plus
लिख सकता हूं मैं C की वैल्यू S इक्वल्स ब्रैकेट ओपन माइनस C बार minus by plus y. Can I rewrite this situation as minus C bar plus y minus by? So S equals minus C bar plus y common into 1 minus b, where 1 minus b represents MPS, and it also saving function में this represents the slope of MPS represents the slope of, ये भी बात याद रखनी है, MPS मैं आज बोलना भूल गया, माफ कर दो, MPS represents the slope of and MPC represents the slope of, thank you. So MPC represents the slope of consumption function and MPS represents the slope of saving function. लेट्स से क्वेश्चन आता है, गिव्स कंजम्पशन शेड्यूल और मे बी वो आपको कंजम्पशन फंक्शन दे रहा है, ही कैन आस्क अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कि गिव schedule also for the same, they'll give you a consumption function any values, I'm just taking a random value and they'll say give consumption function का consumption schedule और maybe give APC schedule, MPC schedule कभी नहीं मांगेंगे based on consumption function, वो आपसे MPC का schedule कभी नहीं मांगेंगे, बट मांग ले तो आपको पता है हर जगह MPC की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैं इसीलिए सॉल्व करके बता रहा हूँ, बट आने नहीं वाला, वो कभी नहीं पूछा गया हिस्ट्री में, कौन सा पूछा गया वो मैं दोबारा बता दूंगा, 0, 100, सबको पता है मैं 0 से क्यों स्टार्ट करता हूं, हाँ पता है, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट आई हैव टू एक्सप्लेन ऑटोनोमस कंजम्पशन. नाउ एट 0 लेवल y 0 to 0.8 into 0 0, so consumption becomes, so that's why what does this 100 represents, autonomous consumption. At 0 level it represents consumption, but it is purely representing autonomous consumption. It is purely representing autonomous consumption. Now 100 plus 0.8, my income is 100. So when I solve it, it comes out to, और वैसे भी मैथ्स में पुत्र 0.8 का मतलब 80%, 0.8 का मतलब तो मेरी इनकम 100 से इंक्रीज हो रही है, तो मेरी कंजम्पशन कितने से इंक्रीज होगी, बिना सॉल्व किए मुझे पता है, बाय 80 रुपीज, क्योंकि 0.8 इंटू एवरी 100 विल गिव मी इंक्रीज ऑफ 80, जो मुझे फर्स्ट वाले 2 स्टेप से पता लग गया था, इसीलिए मैंने सॉल्व भी नहीं किया, चुपचाप कितना ऐड करता जा रहा हूं, चुपचाप कितना ऐड करता जा रहा हूं, 80. नाउ APC not defined, 1.8, 1.3, 1.13, 1.05, 1. If you see APC is decreasing, जो हमने ऑलरेडी थियरी में तो सीख ही लिया था और स्केड्यूल में भी लिख गया that there is an inverse relationship between APC and national income, that is as the APC increases national income decreases, और लास्ट में प्लीज 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 वो लाइन लिखनी है, why, because as per consumption function, consumption increases less than proportionately than national. बट गलती से कंजम्पशन फंक्शन बेस क्या आ जाए आपके पास, एमपीसी भी बताओ, कभी नहीं आएगा, बट आप सब बच्चों को पता है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका एमपीसी कितना आने वाला है, देख लो, प्रूफ कर लो, इनकम में बार बार मैंने कितना चेंज किया जानबूझ के, ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए. हाउ मच इज द चेंज, अरे जब एड येशा 80 की है तो मेरा इंक्रीज दिखेगा भी कितना, और अब एमपीएस का फॉर्मूला लगाया विच इज डेल्टा सी बाय and so on. So based on a given consumption function, the value of MPC will always remain constant, जो कभी नहीं पूछा जाता, to be very honest. But APC बताना था, consumption बताना था, बता दिया, that was more important.
देन अनदर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन विच कैन कम, वो आपको सेविंग या कंजम्पशन फंक्शन दे देगा, सुनते जाना बच्चों, या आपको वो सेविंग फंक्शन दे देगा, या वो आपको कंजम्पशन फंक्शन दे देगा, या आपको सेविंग फंक्शन दे देगा, कहेगा डिफाइन सेविंग, देगा कंजम्पशन फंक्शन बट डेफिनेशन किसकी पूछेगा, हमने कर ली डेफिनेशन, फिर कहेगा एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम, करेंगे उसका भी डायग्राम अभी बात, या एपीएस एंड नेशनल इनकम, एंड फॉर दैट मैटर गलती से पूछ ले क्या, एमपीएस एंड ऑन ए गिवन सेविंग फंक्शन और ऑन ए गिवन कंजम्पशन फंक्शन। तो जब वो आपको कंजम्पशन फंक्शन दे रहा है तो आपको अपना आंसर लिखते वक्त क्या लिखना है बच्चों, सुन लेना, उसने क्वेश्चन में क्या दिया, कंजम्पशन फंक्शन, बट पूछा क्या, डिफाइन, आई रिपीट, उसने दिया तो कंजम्पशन फंक्शन बट पूछा क्या, सेविंग, मैंने सेविंग की डेफिनेशन दी और उसके बाद सिंबॉलिकली इसको यूज किया, जैसे आपके फ्रेंड्स आपको यूज करते हैं, by writing this equation that as per this consumption function my saving function is 100 plus 0.2 of y, 100 plus 0.2 of y। अब आप इसमें स्केड्यूल बना दोगे बच्चों, वही पुराना घिसा पिटा, स्टार्ट किससे करूं, और आप देख रहे हो जीरो से स्टार्ट करना होता है और इस तरह से क्वेश्चन चलता रहता है, जो भी समझदार टीचर क्वेश्चन बनाएगा वो ऐसा गधे का बच्चा नहीं होगा कि जहां पर क्या ना आए, व्हाट इज दिस, बोलो बोलो, so what is break even point, the point at which aggregate consumption is equal to 500 is consumption equals national income, in other words where अभी दिखाता हूँ नेक्स्ट वाले में, in other words where savings will be जीरो, क्योंकि इनकम इज सी प्लस एस, तो अगर इनकम कंजम्पशन के इक्वल है तो आपकी सेविंग्स कितनी होंगी, जीरो, आपकी सेविंग्स कितनी होंगी पुत्र, जीरो। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट, तो उसकी दो डेफिनेशंस बन गई, डेफिनेशन नंबर 1, इट इज द पॉइंट एट विच कंजम्पशन इज इक्वल टू और एपीसी इक्वल्स और सेविंग्स आर और एपीएस इज, सो बाय डूइंग दिस आपने ये प्रूव कर दिया एपीएस जीरो हो सकता है, बाय सेइंग दिस आपने इनडायरेक्टली प्रूव कर दिया सेविंग जीरो हो सकता है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट जीरो लेवल ऑफ सेविंग पे आता है एंड जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो। सो आई वाज ऑन द सेविंग फंक्शन, सेविंग -100 से क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज ये तो जीरो हो जाएगा पहले, और वैसे भी व्हाट डज ऑटोनोमस कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स, तो वो जो कंजम्पशन का 100 था वही मेरा -100 है, कॉल्ड दिस सेविंग। उसके बाद अब ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यानी माय सेविंग विल इंक्रीज, पॉइंट 2 मींस 20% ऑफ इनकम, इनकम मींस चेंज इन इनकम, मैंने बार बार इनकम में कितना चेंज किया 100, और मेरा एमपीएस कितना है 20%, तो यहाँ बार बार कितना ऐड करता जाऊं, ओके। सो अगर हम बात करें बच्चों, मैं एपीएस तक लिखा, एपीएस की वैल्यू मेरी क्या होती जा रही है, डिक्रीज नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, यानी आपका रिलेशनशिप क्या है, जो हमने शुरू में थ्योरी में लिख लिया था, बट यहाँ पे हम पेपर में जल्दी जल्दी में क्या होता है, दिमाग लगाते नहीं, वो माइनस, माइनस मतलब इनवर्स, अरे भाई माइनस की वैल्यू कम हो रही है, समथिंग इज गेटिंग एडेड, सो यू आर हैविंग अ पॉजिटिव कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस एंड, तो ये गलती मत करना पेपर में बच्चों, वो कोई भी रैंडम कंजम्पशन फंक्शन देगा, कहेगा उससे आप सेविंग शेड्यूल बनाओ और एपीएस और नेशनल इनकम का रिलेशन बताओ, मुझे पहले से पता है, एपीसी है तो ऑलवेज इनवर्स, एपीएस है तो ऑलवेज डायरेक्ट, एपीसी के इनवर्स होने का रीजन बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीजेस लेस देन प्रोपोर्शनेटली, देन एक ही लाइन देखो बार बार बोल रहा हूँ, और एपीएस के साथ डायरेक्ट क्यों, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है शायद ये क्वेश्चन आ सकता है,
एपीएस के साथ डायरेक्ट क्यों? बिकॉज सेविंग इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनेटली देन नेशनल। ऑलराइट, अब आ गया मैं आपके साथ, हमने कंजम्पशन का कर लिया, सेविंग का कर लिया, एपीसी एपीएस, एमपीसी एमपीएस कर लिया, बट हमने एमपीसी एमपीएस किया कंजम्पशन फंक्शन बेस्ड। नाउ आई एम राइटिंग अ स्पेसिफिक क्वेश्चन व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व। आपको पेपर में क्वेश्चन आया, डिफाइन एमपीसी एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप। अब बड़े बच्चे, ओ एमपीएस वो तो कांस्टेंट रहता है। बेटा कांस्टेंट कब रहता है? कांस्टेंट कब रहता है? व्हेन यू आर गिवन अ कंजम्पशन फंक्शन और अ सेविंग फंक्शन। वो कांस्टेंट कब रहता है? व्हेन यू आर गिवन कंजम्पशन फंक्शन और ऑलराइट। अब ऐसे क्वेश्चन में डेफिनेशन आपने लिख दी रिलेशनशिप के लिए, पहले आप इंग्लिश झाड़ दोगे। क्या इंग्लिश झाड़ दोगे? दैट the relationship between MPS and national income or MPC and national income can be explained with the help of schedule given below. Schedule किससे start करो? कंजम्पशन कितने से स्टार्ट करो? ये मैंने रट्टा मारा हुआ है, चाहे कंजम्पशन फंक्शन दिया है चाहे नहीं दिया। अब मुझे पता है कंजम्पशन इंक्रीजेस लेस देन प्रोपोर्शनेटली देन नेशनल इनकम। इनकम में कितना इंक्रीज किया? तो मैं कंजम्पशन में 90 इंक्रीज करूंगा। सर आपने तो 190 लिख दिया। मैं कहा नालायक, इंक्रीज तो 90 किया है, इंक्रीज तो 90 किया है। मैंने फिर से इनकम में कितना इंक्रीज रखा है, तो कंजम्पशन में कितना? आपने बोला लेस देन प्रोपोर्शनेटली। पिछली बार 90 कर दिया था ना। अब बहुत सारी और इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, तो अब इच्छाएं कम रह गई, तो एड ऑन भी कम ही होगा। तो पहली बार मैंने कितना ऐड किया? +90। तो अब कितना करूं? जाकि मैं इंक्रीज तो कर रहा हूं बट एट अ, बिकॉज दैट इज व्हाट आई हैव टू फॉलो। अब कितना ऐड करूं? पिछली बार 80 किया था, इस बार उससे भी कम। अब कितना ऐड करूं? और अब कितना ऐड करूं? और बाय डूइंग दिस मैं क्या करना चाह रहा हूं? दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन, क्योंकि ये ब्रेक इवन है जहां पे सेविंग 0 है। वो ब्रेक इवन था जहां पे कंजम्पशन इक्वल इनकम था, और अभी भी ब्रेक इवन तो वही रहेगा जहां पे कंजम्पशन इक्वल इनकम। अब मुझे पहले से पता है डेल्टा सी कितना लिखूं, ये देखो अभी जो रफ में लिख रहा था वही ऐड ऑन ही तो था। तो पेपर में क्या करो, डायरेक्टली सेकंड कॉलम ब्लैंक छोड़ दो, पहले डेल्टा सी यहीं पे लिख दो 90 80 70 60 50, क्योंकि आपको ऐड ऑन तो वही करना है। जैसे 11th स्टैंडर्ड सम टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट वाज टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पे सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल गिव यू टोटल कंजम्पशन विद 100 एड ऑन, बिकॉज ऑटोनोमस कंजम्पशन तो होता ही होता है। डेल्टा वाई वो जो आपने ऐड किया था कितना बार बार, एंड हेंस मैंने प्रूव कर दिया नव्या। क्या प्रूव कर दिया? रिलेशनशिप। और कौन सा? इनवर्स, जो मैंने शुरू में बोल दिया था। तो कंजम्पशन फंक्शन के साथ करता हूं तो मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट विदाउट कंजम्पशन फंक्शन करता हूं तो इट हैज टू बी अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड नेशनल, बिटवीन एमपीसी एंड नेशनल इनकम। अब आ गया ऐसे में एक क्वेश्चन पे, विदाउट कंजम्पशन फंक्शन, विदाउट सेविंग फंक्शन, विदाउट कंजम्पशन फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड वो 100 से 60 हुआ था, तो ये वहां पे इंक्रीज कर रहे थे हाईएस्ट अमाउंट, फिर उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे थे। मैं बस याद दिला रहा हूँ, जब आप एमपीसी का शेड्यूल मेरे साथ बना रहे थे, आप पहले ऐड कर रहे थे 100 सॉरी 100 तो इनकम में, कंजम्पशन में 90, और उसके बाद धीरे धीरे कम ऐड कर रहे थे।
अब सेविंग तो इंक्रीजेस, तो इसलिए इनिशियल ऐड कितना करूं, उसके बाद बिकॉज ये कंजम्पशन के लिए था, तो कंजम्पशन का उल्टा ही तो सेविंग चलेगा। कंजम्पशन में इंक्रीज स्लोअर रेट पे करना था, इसलिए हाईएस्ट वैल्यू से शुरू करके गिराता गया। इसमें लोएस्ट वैल्यू से शुरू कर रहा हूं, मीनिंग देयर बाय यहां पे कितना लिखूं, क्योंकि आपको 10 ऐड करना है ना, चाहे वो कंजम्पशन था चाहे वो सेविंग था, करना ऐड ही है। वहां पॉजिटिव वैल्यू था तो इसलिए वो बढ़ता जा रहा था, बट एट अ स्लो रेट। या नेगेटिव वैल्यू है तो दिखने में ये कम हो रहा है, बट इवेंचुअली ये इंक्रीज हो रहा है। फिर मैंने 20 ऐड किया, फिर मैंने 30 ऐड किया, फिर मैंने 40 ऐड किया, और फिर मैंने 50, एंड हेंस अगेन प्रूव। वो अपनी बात ओवर रूल नहीं कर सकता ना। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच एमपीएस इज 0। नाउ अब मैंने यहां निकाला डेल्टा एस, वो जो रफ में लिखा था मेरा बेटा यही लिख दिया मैंने, डेल्टा वाई और एमपीएस सॉल्व कर लो कितना आ गया। अगेन आपने ये सब प्रूव कर दिया, पॉजिटिव कॉल डायरेक्ट रिलेशनशिप। और इसमें भी वो लाइन तो लिखनी है कौन सी, दैट सेविंग इंक्रीजेस more than proportionately than national income. Now comes equilibrium level of income and employment. Equilibrium level of income and employment. Now when you talk about equilibrium level of income and employment, मान लो यही क्वेश्चन आ गया सिद्धांत पांडे, यही क्वेश्चन आ गया क्या कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नहीं बताया कौन सी अप्रोच, एंड वी नो एडीएस अप्रोच भी होती है और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी होती है। पेपर में डेफिनेशन हमेशा अगर ऐसा वियर्ड क्वेश्चन आए, मतलब अनक्लियर क्वेश्चन आए, तो आपने डेफिनेशन तो क्या लिखनी है, इक्विलिब्रियम लेवल इज अटेन्ड एट ए पॉइंट एट विच एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट। उसके बाद वी नो दैट एग्रीगेट डिमांड, ये अलग से स्टेप लिख दोगे, दैट एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई एंड एएस इज इक्वल टू सी प्लस। सो in other words it is the point at which aggregate saving and planned saving and planned investment are, my bad, planned saving and planned investment are equal, called S is equal to I. लिख दी थी definition. I repeat, it is the level at which, level of income at which aggregate demand is equal to aggregate supply. Or we can also say that since AD is equal to C plus I and AS is equal to C plus S, it is the level of income at which planned saving called ex ante saving are equal to ex ante investment. अब उसके बाद the thing comes schedule, बना सकते हैं अब उसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो डालनी है। मैं शेड्यूल आपको अभी करा दूंगा कि गलती से शेड्यूल हमें खुद बनाना पड़े और वो हमें कंजम्पशन फंक्शन ना दे तो कैसे करोगे, वो भी कर लेंगे। कंजम्पशन फंक्शन दे देगा फिर तो सोचना ही नहीं, उसी में खत्म हो जाएगा सारा। हाँ पहले थ्योरी पार्ट, इसका डायग्राम अलग से, डायग्राम मैंने अभी कोई भी नहीं किया ना, नहीं ठीक है, वो एक साथ करेंगे, देख लेंगे ना। इसके बाद आप इसमें क्या लिखोगे बच्चों, थ्योरी बात, डेफिनेशन लिख लिया। नाउ योर टर्न, इफ एडी ग्रेटर देन, या तो ये एक्सप्लेन कर दो, या इफ सेविंग लेस देन, एक ही बात है यहाँ पे, बिकॉज एडी इज AS is, so indirectly I'm saying S is less than, आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं लिखना। लेट्स से AD, if aggregate demand is greater than aggregate supply, it means what a consumer is willing to purchase in an economy is more than the goods available in the economy, and as a result there is a
shortage. There is a shortage of inventory. जो keywords हैं बच्चों, when this kind of a situation arises or this kind, it's one and the same thing. In both of them, what is happening? Shortage of inventory. साफ है. और अगर मान लो ये AD इज इक्वल टू, ये नहीं दिया उन्होंने पेपर में, डायरेक्टली आपसे ये पूछ लिया, तब भी दोनों तरफ C साथ में लगा लो, तो C प्लस एस क्या बन गया? एग्रीगेट सप्लाई. और C प्लस आई क्या बन गया? एग्रीगेट डिमांड. यानी इनडायरेक्टली इफ सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट देयर आस्किंग इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. तो आप ऐसे सोच लो बच्चों, अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो. सो व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, shortage of inventory. And when there is a shortage of inventory, it induces producer to produce. To meet the demand of the economy, the producer has to produce. So when they produce more, shortage of inventory leads to increase in, ये मैं keywords बता रहा हूँ बच्चों, increase in production. And when the production increases, production generates income, circular flow of income. Production generates income. So can I say my national income increases, called aggregate supply increases. This process continues till equilibrium is assured or restored in the economy. Next ले लिया बच्चों. Sorry, नहीं बच्चों, वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो तो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा. यहाँ तो आप सिर्फ इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर रहे हो और आप बता रहे हो इक्विलिब्रियम. वापस हम क्यों AD इज इक्वल टू AS पे आ जाते हैं? वन वे वी टुक कि व्हाट इफ AD इज मोर देन AS, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट. अब दूसरा, इफ AD इज और इफ सेविंग्स आर, क्योंकि AD इज लेस देन AS मींस एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा है. एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा मतलब सेविंग्स ज्यादा है. So can we say if aggregate demand is less than aggregate supply, initial part is same. What a consumer is willing to consume is less than the goods available in the economy. क्योंकि aggregate supply is what a producer is willing to supply. वो supply करना चाहता है 100 यूनिट्स, कर भी रहा है, और हमारी डिमांड तो कितनी है? तो प्रोड्यूसर के पास तो 20 यूनिट बच गई. तो यहाँ पे कीवर्ड क्या होता है? मेरे को ये वर्ड बहुत गंदा लगता है, बट कुछ नहीं, आई कांट हेल्प इट. इन्वेंट्री piles up. So when inventory piles up, there are certain producers who cannot bear this loss. क्योंकि अगर इन्वेंट्री पड़ा रहेगा तो खराब हो जाएगा. So when there is a inventory pile up called buffer stock, can I say inventory pile up leads to buffer stock of inventory. So when there is a buffer stock, तो प्रोड्यूसर कहेगा यार जब ये बिक जाएगा तब प्रोड्यूस करूंगा. बफर स्टॉक का मतलब क्या हुआ? कहेगा यार जब ये स्टॉक बिक जाएगा ना तब प्रोडक्शन के बारे में सोचूंगा, बंद कर दे थोड़े टाइम के लिए प्रोडक्शन. सो उसका उल्टा, इट विल लीड टू डिक्रीज इन प्रोडक्शन. एंड व्हेन द प्रोडक्शन डिक्रीजेस, नेशनल इनकम विल, एंड व्हेन नेशनल इनकम विल डिक्रीज, एग्रीगेट सप्लाई विल, बिकॉज नेशनल, अभी तो बोला थोड़ी देर पहले, एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम इज वन एंड द. So when the national income will decrease, aggregate supply will decrease. This process will continue till equilibrium is. बस फर्क इतना है, अभी मैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बोल रहा हूँ. अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे तो आप क्या बोलोगे? सेविंग विल इंक्रीज और सेविंग विल डिक्रीज, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, सो दैट इट रीचेस इक्विलिब्रियम. सर नहीं समझ आया, कोई नहीं, मैं एक दोबारा बोल के बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, सेविंग लेस मोर देन इन्वेस्टमेंट. अब इसको कैसे बोलूंगा? When savings are more than investment, यानी people are consuming. If savings are more than investment, यानी people are saving more, that means they are consuming. And when they are consuming less, it means inventory, or there is a buffer stock of inventory, which leads to decrease in, and as a result saving will. तो सेविंग अभी ऊपर था, एज अ रिजल्ट सेविंग विल, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल इट बिकम्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कॉल्ड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, कॉल्ड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. ना
number 69 last one. All right. Now, ex ante. मैंने तो खाली word ex ante लिखा. When you say ex ante means, so अगर वो बोले ex ante investment, what you plan to invest during one financial year is called ex ante investment. वो बोले ex ante saving, what you plan to, so खाली word planned याद रखो. So what you plan to save during one financial year becomes ex ante saving, and what you plan to invest during one financial year becomes ex ante investment. Can they be equal? Yes, but only at equilibrium level of income. Okay, then comes X. मैंने कीवर्ड क्या याद किया हुआ? Actual loss. So by ex post saving means what we actually save during one financial year. What we actually save as a result of production, what we actually save during one financial year is called ex post saving, and what we actually invest during one financial year is called ex post investment. So word actual याद करना है, वहां पे plan और यहाँ पे actual, all about ex ante saving, ex ante investment, ex post saving and ex post investment. Technically teachers यहाँ पे क्या लिखते हैं? They prefer writing this. They don't write by. They write C processor. और ये कौन सी डिग्री का बनाना है? और ये पेपर में लिख के भी आना है यहाँ पे बच्चों डायग्राम. So we are talking about, अगर वो आपको कंजम्पशन फंक्शन पूछ रहा है और उसका डायग्राम मांग रहा है, इनकम की लाइन तब भी बनेगी. अगर वो कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप पूछ रहा है, इनकम की लाइन तब भी बनेगी. अगर हम डायग्राम वाइज बात करें, मैं डायग्राम्स पे आ गया जो मैंने आपके साथ किया. Point which represents break even, because break even point वही तो था, where income is equal to consumption. Break even point is the point where income is equal to consumption. This is positive saving, because now income is above C. So when income is greater than consumption, you are saving the money. Or this is negative saving. So let's say this is OQ is the level of income. Anything below OQ level of income represents this saving, and anything over and above OQ level of income represents positive saving. And what does OQ level represents? Break even point at which APC equals 1, at which consumption equals income, and at which saving equals indirect way of talking about break even point. Anji. बच्चों OQ पे तो मैंने ब्रेक इवन पर मैंने इनकम पे कंजम्पशन इक्वल बोला, सेविंग 0 बोला, मैंने कंजम्पशन थोड़ी 0 बोला. बेटा मैंने ये शेडेड एरिया मैथ्स की बात कर, कि अगर मेरा इनकम का लेवल OQ से कम है तो मेरा इनकम कम होगा और कंजम्पशन, तो ये जो शेडेड एरिया है दिस रिप्रेजेंट्स, हाँ, negative saving, this saving is one and the same. Okay, now what is this? A starting point of consumption curve. And why consumption curve does not start from origin? Because of autonomous consumption in the economy. Because of autonomous consumption in the economy. आ गया मैं सेविंग पे.
खाली क्वेश्चन किस पे आ रहा है? सेविंग पे। इनकम की लाइन आप तब भी बनाओगे। So what, sorry, saving and level of income. This point called OQ represents, because break-even point is the point at which saving equals. That's why saving curve touch x-axis. That's why saving curve touch x-axis. And this is the point at which consumption equals income. क्योंकि अगर saving 0 तो consumption equals, and again this is the point at which APC equals. So far so good. All about saving का diagram. अगेन वही जो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था कि अगर वो आपको कहता है, जो थियरी में हमने बोला था कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आपने डेफिनेशन एडीएस की दी थी, सेविंग इन्वेस्टमेंट की दी थी, या दोनों की दी थी। तो डायग्राम भी दोनों का, बट कैसे देना है पुत्र? वन आफ्टर अनदर, मीनिंग देयर बाय। ध्यान देना बच्चों, अब जल्दी मत कर। अब बारी आ रही है, हमने इन्वेस्टमेंट के डायग्राम तो वहीं के वहीं बना दिए थे। उसका रीजन था क्योंकि मुझे यहाँ पे यूज करना है कौन से वाला, ऑटोनोमस या इंड्यूस्ड, कॉल्ड इनकम इन एन आउट। दिस इज माय कंजम्पशन। सो नाउ C plus I becomes एग्रीगेट डिमांड। कोई ये कॉन्सेप्ट अभी काट दो, इस पे मैं बाद में आता हूँ। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, if your AD question comes for 4 marks and they say give diagram, so this is the diagram I'll give. मैं डायरेक्टली ये वाली लाइन नहीं बनाऊंगा बच्चों, बिकॉज ये डिराइव किससे हुआ? C plus I से, तो आपको C भी दिखाना पड़ेगा और I भी दिखाना पड़ेगा, और C और C plus I का कर्व पैरेलल चलता है, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट, विच इज नथिंग बट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, विच रिमेन्स constant irrespective of change in national income. Aggregate supply diagram अगर वो पूछ ले, sorry, this is C plus, ये तो कौन था? 45 डिग्री इज ऑलवेज एग्रीगेट सप्लाई। अब मैं C कहां से स्टार्ट किया? यहाँ से लेट्स से दिस इज OA कॉल्ड 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, तो मैं नीचे भी कितना जाऊंगा? -1 तक, टू स्टार्ट माय सेविंग कर्व, टू स्टार्ट माय, सो दैट OA इक्वल्स, लेट्स से इसको मैंने नाम दे दिया B, OB दोनों का इक्वी डिस्टेंट ओरिजिन से होना चाहिए। उसका रीजन ही सिंपल है, बिकॉज at zero level autonomous consumption represents this saving in the economy, और जहां पे कंजम्पशन इक्वल इनकम है वहां पर उसको किसको टच करना है? and then you will draw the line to get saving curve. This is a diagram to make the concept AS with diagram, अगर वो मांगे तो। उसमें अगेन आपको C की भी लाइन बनानी है, S की भी, एंड देन C plus S की, लाइक C की भी बनानी थी, I की भी बनानी थी, देन C plus I। तो AD का डायग्राम इज नॉट कंसिडर्ड कंप्लीट अगर आपने C और I की इंडिविजुअल लाइन नहीं दी, एंड एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम भी नॉट कंसिडर्ड कंप्लीट अगर आपने C और S की लाइन नहीं दी। बट ये कब देना है? जब इंडिविजुअल क्वेश्चन है, किस पे? AD पे और AS पे। अब मैं आ जाता हूं उस पर बच्चों, इक्विलिब्रियम लेवल। क्वेश्चन साइलेंट है, देखो दो तरह से क्वेश्चन आएगा, आई रिपीट वंस अगेन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ
इक्विलिब्रियम विद ADAS, वन डायग्राम। कौन सा ADAS का? अभी मैं बना दूंगा दोनों का एक साथ, बट कब कौन सा लेना है? इफ दे से ADAS अप्रोच, सिर्फ ADAS वाला। सो डेफिनेशन वो भी ADAS वाला। इफ दे से सेविंग एंड, तब भी एक डायग्राम। कौन सा? सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला। If they say C plus I, then also one diagram, because C plus I represents तो फर्स्ट एंड थर्ड इनडायरेक्टली सेम है, बस उसने डायरेक्टली ADAS ना बोल के इनडायरेक्टली AD के कंपोनेंट्स बोल दिए, इनडायरेक्टली AD के कंपोनेंट्स बोल दिए। C plus S, again which approach? C plus S is aggregate supply, so indirect way of again talking about ADAS approach. And last क्या लिखती है? एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम, और कुछ बोला ही नहीं। देन जो भी मैं डायग्राम बनाऊंगा उसमें आपने 1 का भी बनाना है और 2 का भी बनाना है, 1 का भी बनाना है और 2 का भी। क्या इस बार मैंने नव्या C और I की इंडिविजुअल लाइंस बनाई? नहीं बनानी। वो कब? जब सिर्फ क्वेश्चन AD पे और सिर्फ क्वेश्चन AS के ऊपर है, उनकी डेफिनेशंस मांगता है। यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे? AD भी लिखोगे और यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसी के नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है बच्चों, इसी के नीचे चलो मैं यहीं पे गंदा गंदा बना देता हूँ। ये लाइन स्ट्रेच कर लेना, ये शब्द। उसके बाद यहाँ बना दी इन्वेस्टमेंट की लाइन, और इक्विडिस्टेंट, जैसे ये OA है, याद करो बेटा, जैसे ये OA है, इसको आप OB से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे कट करते हुए लेके जाओगे, so that OQ is the same whether I do AD is equal to AS or I do saving is equal to investment। तो ये दोनों डायग्राम बनाऊंगा कब? जब क्वेश्चन सिर्फ क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम। अदरवाइज मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कब हम सिर्फ डायग्राम 1 देंगे और कब हम सिर्फ डायग्राम 2 देंगे। और आप y एक्सिस पे क्या लिखोगे? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। और यहाँ पे तो वही आएगा लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो फार सो गुड, लॉक कर दूं? कर दिया बच्चों। मेरा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हो गया। आप देखो वो थियरी मैंने पहले ही डिस्कस कर ली कि आप जब डायग्राम बनाओगे तो लिख दोगे व्हाट इफ AD इज मोर देन AS, नहीं तो पूरे 6 नंबर नहीं मिलेंगे। स्केड्यूल तभी देना जब क्वेश्चन मांगे, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन यू हैव टू गिव व्हेन यू आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। चाहे कोई एक दे देना AD मोर देन AS एंड वाइस वर्सा, चाहे कोई एक दे देना एंड वाइस वर्सा कर देना, बट एटलीस्ट एक आपको देनी पड़ेगी ईदर विद AD AS अगर क्वेश्चन अनक्लियर है, मतलब 5th टाइप की सिचुएशन का, या सेविंग मोर देन इन्वेस्टमेंट एंड नेक्स्ट वाला वाइस वर्सा। ओके, इन्फ्लेशनरी गैप, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, excess demand called inflationary gap। excess demand called inflationary gap का कॉन्सेप्ट आप कब लगाते हो? when you are working at less than full employment level
or you are already working on full employment and then there is a demand increase already. So excess demand का concept is, ये मैंने अपने दिमाग में अपने लिए लिखा हुआ था बच्चों, मेरी डिक्शनरी में वो जो मर्जी बोलता रहे, मैं अपना आंसर डिफेंड तभी करूंगा एक्सेस डिमांड को जब वी आर ऑलरेडी वर्किंग एट, क्यों? क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन अपने नोट्स में पेपर में भी पूछा है, स्कूल वाले भी पूछते हैं, यू आर वर्किंग एट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड नाउ देयर इज इंक्रीज इन aggregate demand and now there is increase in aggregate demand. So if they say you're working at underemployment and there is an increase in aggregate demand, that's good, yeah, there is a scope of improvement, rather it is good for the economy, because when there is increase in aggregate demand you will hire more people to produce more, so which will generate employment and as a result which will generate income, so that helps the economy to move from underemployment to, that helps the economy to move from underemployment to full employment equilibrium. So that never represents excess demand and hence inflationary gap. So inflationary gap is what? When the actual aggregate demand, अभी डायग्राम बनाएंगे, ये साथ साथ करेंगे, इसका डायग्राम भी और डेफिनेशन भी, पहले डायग्राम, when the actual aggregate demand, बोल रहा हूं बट समझेंगे पहले, is more than the demand which is at फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि उसके बियॉन्ड इंक्रीज पॉसिबल, तभी तो इन्फ्लेशन आया. तो अगर हम डायग्राम वाइज देखें, और हम एज्यूम कर लेते हैं वी आर वर्किंग एट, एंड दैट्स द रीजन I have always remembered that excess demand is post full employment. So आपका डायग्राम जब ये दिखा रहा है intersection between ADAS, this is you are working at full employment, and then you will draw another dotted line which is known as C plus I1, called actual aggregate demand is more than C plus IO, called actual aggregate demand more than the aggregate demand required to attain full employment. Or you can say this also, when the actual aggregate demand called C plus I1 is greater than aggregate supply, when actual aggregate demand is greater than aggregate supply, at which level? At full employment level, there exists a gap which is known as inflationary gap, जो बहुत सारे बच्चे गलत मार्क करते हैं. वो क्या करते हैं, यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर देखो बेटा, लाइन ड्रॉ करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो इस पोर्शन को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप. नो, मैंने ऐसे सिखाया था, मैं इस पॉइंट से मूव कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट से यहां मूव किया हूं, ये C प्लस आयो कोई तो ऊपर लेके गया हूं, तो इसीलिए ये जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप, जो लेबलिंग में आप ज्यादातर कुछ बच्चे गलत कर जाते हैं. This gap is known as inflationary gap. So again, it is proved C plus I1 called actual aggregate demand is more than C plus IO or C plus S called more than aggregate supply, which was at full employment level. There exists a gap which is known as inflationary gap. My bad. यहाँ पे क्या लिखोगे, और यहाँ पे level of income and employment. Again, this level represents, because we assume whenever we have to explain the concept of excess demand or deficit demand called inflationary gap or deflationary gap, we first assume that we are working at full employment. Now the new line,
अब ये वाला गैप, व्हाट इट, ऊपर वाला नहीं, कुछ लोग उल्टी साइड वाला कर देते हैं, ये वाला गैप। समझ आ रहा है पुत्र? नव्या नहीं, ये तो मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट है बच्चों। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट हम इक्विलिब्रियम नहीं दिखा रहे, हम तो डिफ्लेशनरी गैप दिखाना चाहते हैं। इन्फ्लेशन में ऊपर की तरफ गई थी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, तो डिफ्लेशन में, अब मैं इस पॉइंट से यहां पर आया, तो ये वाला गैप, कुछ लोग क्या होता है जब लाइन ड्रॉ करते हैं ना, वो ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, वो यहाँ पे मार्क कर देते हैं गलत। वो आपने लाइन इसलिए ड्रॉ की क्योंकि आप OQ से OQ1 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आ रहे हो, बट मेरा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन पॉइंट्स के बीच में, मतलब उसी लाइन के ऊपर नीचे देखा जाता है, विद द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड मूविंग अप और मूविंग, और उसकी वजह से जो ट्राइंगल बना, दैट ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स योर, सो व्हेन द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड is less than the aggregate supply, सारी definition same, बस less than or more than, is less than the actual aggregate demand required to attain full employment equilibrium, there exists a gap which is known as deflationary gap. गवर्नमेंट बजट हमारा टर्म 1 में था, बट अगर वर्स्ट सिनेरियो हो तो उस पर क्या इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है वो हम देखेंगे। मेजर टू कंट्रोल inflationary gap called excess demand, or indirectly this chapter requires your thorough knowledge recall of money and banking। आता है सबको, मैंने शॉर्ट में भी कराया था, बट यस, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है। इकोनॉमी में अगर पैसा ज्यादा है तो हमें इकोनॉमी में से पैसा निकाल दो। देन सेकेंड थिंग, अगर आपको भी भूल जाओ तो रेट एंड रेशियो इंक्रीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। आई स्केयर कभी भूल जाओ तो अभी प्रूव भी कर देंगे। रेट एंड रेशियो इंक्रीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिक्रीज टू कंट्रोल डिफ्लेशन। So first to begin with fiscal policy. Number 1, expenditure policy. त्रिशा बजाज की। Number 1, expenditure policy. तो बताओ, in expenditure policy, if you have to control inflation, आप मतलब गवर्नमेंट, भारत सरकार बन के सोच रही हो, आप अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, चला दे यार, मार दिया गर्मी में। आप अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगी या कम कर दोगी? क्योंकि मेरा खर्चा लोगों की इनकम को वही तो कम करना है। सो कैन आई से ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी गैप वी विल decrease the expenditure. Which one, productive or unproductive? Productive मत कम करना, उससे तो नेशनल इनकम ही कम हो जाएगी। Which expenditure you have to reduce? क्योंकि productive expenditure are always helpful because they generate more employment. So technically you will decrease which expenditure? Unnecessary expenditure or unproductive expenditure. Revenue policy. When you talk about revenue policy, गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? तो बस उसी को लेके दिमाग में सोच लो, टैक्स। अगर हम लोगों पे टैक्स कम लगाएंगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, उनकी परचेजिंग पावर, नो नो नो, मुझे ये नहीं करना, क्योंकि मुझे तो इस समय इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। तो रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए आप टैक्स को क्या कर दोगे? यानी you will introduce new taxes or you will increase the rate of existing taxes. As a result, the disposable income of consumer decreases, and when the disposable income of consumer decreases, aggregate demand will decrease. और अगर सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, सेविंग will, this process will continue till equilibrium is, यहाँ नहीं बोलना है, मैं बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, till
inflation is controlled. So this policy is done to control inflation, क्योंकि मुझे purchasing power कम करनी है, equilibrium वापस से लाना, वो तो अपने आप आएगा ही आएगा। वो तो हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है what are the measure you are going to take, so this is the measure we are going to take. Then third, जो मेरे नोट्स में भी लिखा होगा और जो गवर्नमेंट बजट के चैप्टर से लिंक था, तो बताओ यहाँ पे ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, इसका भी मेरे पास रट्टा है, सरप्लस बजट पॉलिसी फॉलो करोगे या डेफिसिट बजट पॉलिसी? देखो, डी फॉर डेफिसिट, डी फॉर डेफिसिट बजट और डी फॉर डिफ्लेशन, तो विच पॉलिसी? सरप्लस बजट, क्योंकि गवर्नमेंट का सरप्लस, बजट में सरप्लस आप लोगों की परचेजिंग पावर कम कर दी ना, क्योंकि मेरा बजट में सरप्लस आ रहा है यानी मैं पैसे कम खर्च रहा हूं या लोगों पे ज्यादा टैक्स लगा रहा हूं, वहीं से तो गवर्नमेंट के पास पैसा आया। गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहां से आया? सरप्लस क्या है? रेवेन्यूज और रिसीट्स मोर देन पेमेंट। तो रिसीट ज्यादा कब? जब मैंने आप पे टैक्स ज्यादा लगाया या मैंने अपने खर्चे, दैट इज व्हाई सरप्लस बजट पॉलिसी इज फॉलोड टू कंट्रोल inflation. Surplus budget policy is followed to control inflation. So far so good. Then आ जाता है आपका be on the safer side. ये तीन डेफिनेशन याद कर जाओ। आई नो मनी इज बैंकिंग की है, बट इस चैप्टर में भी तो यूज होता है एक तरह का, तो आपको अगर इस चैप्टर में पूछ रहा है तो उसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है। बैंक रेट, रेपो रेट एंड बैंक रेट is the rate at which central bank lends money to meet repo rate is the rate at which, वो भी वही था, इसमें भी शॉर्ट टर्म, इसमें भी शॉर्ट टर्म, and reverse repo rate is the rate at which commercial bank parks its surplus fund with the RBI. Commercial bank parks its surplus fund with the RBI. जल्दी बता मोटे। नहीं मैं नहीं बोल रहा, उस दिन पिछले वाले जूनियर बैच में बच्चों ने बोला दिस इज वेरी बैड, तो बच्चों की तरह रोने लग गया ना, मजाक में बोला यार, नो सर यू शुड नॉट से दैट। और नाउ कोई भी रेट उठा लो, दे आर इंक्रीज टू कंट्रोल एंड डिक्रीज टू कंट्रोल, बट उसको दो पॉइंट समझ लेते हैं, एक बैंक रेट का और रिवर्स रेपो। उसमें लिखने में थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि अगर सेम लिखोगे और आपके 40 और 40 आ रहे हैं, उस चीज के मार्क काट। Whether it is bank rate or it is repo rate, one is for short term and one is for long term. आर्यन मलिक, आपके लिए आर के बाद दुनिया में कौन है? अबे आर के बाद दुनिया में कौन है? तो RRS यानी रिवर्स रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म, और अल्फाबेट में बी के बाद पहले एस आता है या एल आता है? बी के बाद, तो बैंक रेट में इट इज लॉन्ग टर्म। सर भूल जाओ बच्चों, बहुत सारी चीजें इस पर हमने अल्फाबेट से की हैं जो बहुत हेल्पफुल होती हैं, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, आप उसको उस तरह से देख लेना। ओके, सो व्हेन द बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट, सॉरी रेपो रेट इज इंक्रीज, पहले इन दो की बात कर रहा हूं। व्हेन द बैंक रेट और रेपो रेट इज इंक्रीज, कमर्शियल बैंक विल बोरो, ऑब्वियसली व्हेन दे विल बोरो लेस, यार लोन महंगा हो गया है, महंगाई में तो हम कम ही खर्चा करते हैं। When they will borrow less, their ability to give loan and when their ability to give loan decreases, money supply in the economy, and this is the reason what we want to do to achieve
a target of decrease in inflation, हमें मनी सप्लाई कम करना था, ओके. So this process is followed to control inflation called I scale. अब जब रिवर्स रेपो रेट लिखते हैं पिया सॉरी नॉट पिया, रिवर्स रेपो रेट, when the reverse repo rate is increased, अब आपके लिखोगे कमर्शियल बैंक विल पार्क मोर एंड मोर फंड्स विद आरबीआई. रिवर्स रेपो रेट में रेट बढ़ गया, यानी जिस रेट पे आप लोन दे रहे थे आरबीआई, और आप कहते हो यार जब मुझे आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो मैं कस्टमर को क्यों दूं, सिरदर्दी भी लूं, फॉलो अप भी करूं लेमन सेंस में, तो यू विल पार्क, कमर्शियल बैंक विल पार्क more funds with rest everything is same, and as a result their ability to give loan, क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा तो उन्होंने आरबीआई के पास रख दिया, तो उनकी ability to give loan, so when their ability to give loan decreases, बाकी चीजें तो सेम ही है, that money supply in the economy is decreased, and this is done to control inflation. मेरे 3 पॉइंट है. ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करें, विच इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग कौन करता है, सेंट्रल बैंक कॉल्ड आरबीआई, टू पब्लिक एज वेल एज कमर्शियल. अब ये बाइंग कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कॉल्ड आरबीआई. चाय पिला दे, पानी वानी दे दे जरा. मेरे को बनाना नहीं आता, 500 रुपए का नोट है ये, दिस इज 500 रुपी नोट. ये कौन है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, कॉल्ड इकोनॉमी. पब्लिक तो इकोनॉमी में ही है ना, तो ये पैसा किसके पास गया, क्योंकि मैं कई बार वैसे पूछता होता था, तो मैंने इस पूरे साल देखा, पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, समझते नहीं अभी पिछले 3-4 सालों से. बाइंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी डिक्रीजेस, तो भाई देख तेरे सामने गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा तो ये आपकी जेब में आ गया, तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन इससे कंट्रोल. डेफिनेशन तो आपने लिख दी, बट अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बता रहे हो तो आप क्या बताओगे, क्योंकि वहां पे इट गोज बैक टू कि गवर्नमेंट ने तो सिक्योरिटी बेची है, गवर्नमेंट को पैसा मिला है. भैया आप घर बेचोगे तो पैसे मिलेंगे ना, तो घर की तरह ले लो आप इसको. इस केस में इस क्राइम, क्योंकि इसके हाथ से पैसा और उसकी मनी सप्लाई. तो दिस इज द केस which fits into my inflationary control. So to control the inflation, RBI sells security. So deflation is called. And then comes CRR and SLR. Be on the safer side. मेरे नोट में मैंने इस चैप्टर में भी डेफिनेशन दे रखी है, पढ़ के जाना. Percentage of net demand and time deposit is CRR. And percentage of net demand and time deposit in the form of statutory self with themselves. Statutory self with themselves. S for self, S for statutory. So SLR is the ratio of deposits kept with themselves, called our commercial bank. And percentage of deposit kept with RBI is cash reserve ratio. So S for self and S for statutory liquidity ratio, और जहां statutory liquidity ratio आता है, that is in the form of liquid assets. That is in the form of liquid asset, ये word लिखता है. Again, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, any rate oblique ratio is increased to control. So now again, when these ratios are increased, the ability of commercial, वो लाइन सारी पुरानी है बच्चों, BR और RR और RR वाली. The ability of commercial bank to give loan
and as a result money supply in the economy decreases, and this is done to control, और इसका उल्टा deflation. Number 2. Margin requirement. Number 2, margin requirement. What is the definition? Sorry, what is the formula for margin requirement? दस लाख के सिक्योरिटी और लोन मिला 8 लाख. We call it as MR. So what is MR? This is VOS and this is AOL. The difference between the value of security and amount of loan. कि जब आप सिक्योरिटी, सबको पता है सिक्योरिटी की वैल्यू लोन से बड़ी होती है, बैंक रिस्क नहीं लेता. So the difference between the value of security and amount of loan is termed as margin requirement. Now margin requirement 2 लाख था. इधर देखना बच्चों, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बताओ अमाउंट ऑफ लोन कितना. ये मैंने अब काट दिया. अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 2 लाख है और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 10 लाख है, सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लोन? राहुल है उधर. So this is the money supply. Amount of loan क्या? Money supply in the economy. Done. अब मैंने दूसरे एग्जांपल में मार्जिन रिक्वायरमेंट कर दिया 3 लाख. सिक्योरिटी की वैल्यू तो इतनी है. अब बताओ अमाउंट ऑफ लोन कितना है? मैथमेटिक अपने आप देख लो ना बच्चों, अगर आप भूल जाते हो. वन लाइन इज ऑलवेज देयर. बस पर कितना है, एबिलिटी टू लोन अब हट गई, क्योंकि ये सीधा अमाउंट ऑफ लोन है. तो अमाउंट ऑफ लोन मींस मनी सप्लाई. तो डायरेक्टली आप किसकी बात करते हो? मनी सप्लाई. So when the margin requirement is increased, the amount of loan sanctioned is less, and as a result, money supply in the economy. तो वही margin requirement है, percentage है, जो भी है. Any rate or ratio is increased to control inflation and decreased to control deflation. Then आपके पास एक पॉइंट आता है, वो यहाँ पे ज्यादातर पूछते नहीं है बच्चों, बट फिर भी बात कर लेते हैं. मॉरल सुएशन. called a persuasion or request by RBI to commercial bank to follow my directives. भाई मैंने बोला लोन देना बंद कर दे, नहीं करेगा तो मैं अपने मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स यूज कर लूंगा, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. So this is a persuasion and request to follow the policy suggested by RBI. It can be done through speeches, letter, correspondence, etc. And last but not the least, selective credit control. Selective credit control यानी to give loan to a priority sector and to discourage giving loan to a non-priority sector. So जब आप loan दे रहे हो priority sector, you are moving in a positive manner, and when you are discouraging a loan for a sector, particular sector, you are moving in a negative. So this is how you can control inflation, और इसका उल्टा deflation. All about inflation and deflation. बस 5 मिनट और दे दो, उसके बाद आप बोलोगे आप में हिम्मत है तो मैं थोड़ा सा और करा दूंगा वो जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, नहीं तो मैं वो कल करा दूंगा बच्चों. हाँ, कल मैं क्लास सिर्फ ऑनलाइन ले पाऊंगा बिकॉज टुमारो इज द लास्ट प्रेयर मीटिंग. आई विल बी इन नोएडा, तो मैं आपको वहीं से ऑनलाइन क्लास ले लूंगा, देन आई विल जॉइन. लास्ट मेरा पॉइंट कौन सा बचा? हाँ, गलती से आपको आ जाए इन्फ्लेशनरी गैप. वेरी रेयर, मेरे को याद नहीं आ रहा, 20 साल में शायद 1 या 2 बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि जहां आपसे इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी पूछा गया हो स्पेसिफिक विद सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच.
Otherwise, so inflationary gap means EDS approach. Deflationary gap also EDS approach. But what if they say explain the concept of inflationary gap? Definition लिखनी आती है उसमें ही रहने वाली है. With the help of saving investment approach. बस एक ही बात याद रखना, वो जो लेबलिंग है, इन्फ्लेशन सेम लाइन पे ऊपर जा रहा था एडीएस पे. समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कह रहा हूं? सेम लाइन पे मैं ऊपर जा रहा था इन्फ्लेशनरी गैप में, दिस इज व्हाट आई मेंट. और सेम लाइन पे मैं नीचे आ रहा था फॉर डिफ्लेशनरी गैप, जो मेरे को लेबलिंग करके दिखा. ये मेरा क्या आया? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. जैसे एडीएस अप्रोच में जहां एडी इज इक्वल टू एस होता है, दैट रिप्रेजेंट्स योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. वैसे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में यहां आप लिखोगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अब आप कंफ्यूज हो जाते हो मैं क्या करूं, बाई चांस आ जाए, क्योंकि ये वाले डायग्राम हमने ज्यादा प्रैक्टिस किए नहीं, मैंने भी एक एक दो बार कराए हैं क्योंकि ज्यादातर आते नहीं. मैंने कहा बच्चों इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है? व्हेन, समझने की कोशिश करना है तो रट्टा, विच इज, यही है ना बच्चे? पहले भी एडी में चेंज कर रहे थे ना, एडी का कंपोनेंट क्या है? आई ना, सी तो कट गया, तो चेंज किसमें करना है? ले रहे हो इन्फ्लेशन. अब यहां से यहां पहुंचा ना, आई रिपीट यहां से यहां पहुंचा ना, पैरेलल लाइन I0 I1, this represents inflationary gap. This represents inflationary gap. अब यहां से यहां पहुंचा ना, this represents inflation. डॉटेड हो जाएगी. तो लेबलिंग गलत मत करना, उसी लाइन पे ऊपर और उसी लाइन पे नीचे. और सेविंग और इन्वेस्टमेंट में आपने चेंज किसको किया? इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि एडीएस में किसको चेंज कर रहे थे? एडी को, एंड एडी का कंपोनेंट आई होता है एस. तो ये था एक ब्रीफ ब्रश अप थ्रू द चैप्टर. ये 2-3 चैप्टर मेरे ख्याल से आपकी बुक में है, उन सब का मिला के.